In the last lecture, we studied about some problems that why purchasing power parity theory doesn't hold in real life. And it was due to some assumptions which are not fulfilled, and the problems or assumptions which are not fulfilled are that in purchasing power parity theory, when we use it for the exchange rate determination, we assume that there is no transportation cost and there are no trade restrictions. So the price of the basket of goods, same basket of goods should be same in all countries, but it doesn't exist and it doesn't happen in the real life. It is rare that between two country purchasing power parity theory exchange रेट जो सजेस्ट करती है वही एग्जिस्ट करता हो। इसकी रीजन में पहली कि जैसा कि हमारा अजम्पशन था कि देर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, लेकिन आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या गुड्स के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होती है। इसके अलावा वो assume that there is no trade restriction, or in current world it is not possible, there is always one or other type of trade restrictions. And another reason was cost of नॉन ट्रेडेबल इनपुट्स के गुड्स की प्रोडक्शन में जो चाहे देखने में गुड्स सेम ही हो, ऐसे इनपुट यूज होती हैं जो ट्रेडेबल नहीं होती हैं, उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। जिसके फॉर एग्जांपल रेंट पे अगर आपने बिल्डिंग ली हुई है किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, तो जिसकी वजह से सेम बास्केट ऑफ गुड्स विल नॉट हैव द सेम प्राइस इन डिफरेंट मार्केट्स। Another problem was that we assume that each and every person has perfect information and they can take the advantage of that perfect information, and they will buy the goods from the cheaper market and will resell it in the market where its price is higher. But in the real life, people don't have perfect information, and even if they have perfect information, they are not able to take advantage of this perfect information, or they may not able to do that much amount of trade that will bring equalization in the prices of the products. And there was another problem, and it was about that when we study the purchasing power parity theory as a theory of exchange rate determination, we didn't consider other participants of the foreign exchange market. And these are the investors. They play a major role in the foreign exchange market exchange rate determination. But we assume only that there are the exporters and importers. So the spot exchange rate which exists in the foreign exchange market is may be determined by the interest rate parity theory rather than the purchasing power parity theory. So results may not be show that the purchasing power parity theory holds between any two countries in at any given point of time. Then we study about the relative version of purchasing power parity theory, and it is a dynamic version of the purchasing power parity theory in which the exchange rate or the spot exchange rate between two currencies will be equal to the inflation rate differential between the two countries. And the country which will have the higher inflation rate, its currency will depreciate, and the currency which inflation rate will be low relative to the other countries, its currency will appreciate. Inflation always leads to the depreciation of a currency. ये हमने कर लिया था. Now today we will start purchasing power parity theory in the long run. In general, the purchasing power parity theory doesn't work when it is applied to the real world data. कि आप real world का data लेके उस पर ये theory apply करें, जैसे आप different और problem के लिए regression run करते हैं तो आपके results जो होते हैं आपके hypothesis को favor करते हैं। तो real life data जो होता है जब आप उस पे purchasing power parity के लिए testing करते हैं तो it does not support the purchasing power parity theory. लेकिन चूंकि इसकी जो पीछे लॉजिक है वो इतनी साउंड है, या इसमें इतने मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको इसको रिजेक्ट करना बने, इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस, एंड इसकी लॉजिक जो सी है वो समझ में आने वाली बात है, इसलिए इकोनॉमिस्ट डू नॉट रिजेक्ट दिस थ्योरी, दे आर रिलेक्टेड टू डू दैट विद द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। अदरवाइज अगर किसी भी थ्योरी को डाटा जो सा सपोर्ट नहीं करता तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। दे डू नॉट रिजेक्ट इट बिकॉज द लॉजिक ऑफ द थ्योरी सीम्स पर्टिकुलरली साउंड। एंड दूसरी बात ये कि एक इसकी लॉजिक बहुत साउंड है, दूसरी ये कि इसमें जो जितने भी assumptions हैं हम देखते हैं कि वो चूंकि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। देयर आर मैनी फ्रिक्शंस, टैरिफ, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, so we cannot say if we are able to remove if we are able to give a model in which all these assumptions hold, then it will exist or not.
ऐसा चूंकि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि आप एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर सकें कि डिफरेंट कंट्रीज को लेके जिसमें ये सारे अजम्पशंस आपके होल्ड करते हो कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ना हो, कोई टैरिफ ना हो, परफेक्ट इंफॉर्मेशन और फिर आप अप्लाई करें. So it is not rejected on this basis. But now we say that economists explain it as a theory of the long run. They present for parity as a long run theory of exchange rate determination rather than a short run. So in the अगर आप इसे लॉन्ग रन थ्योरी ज्यूम करते हैं तो इन द शॉर्ट रन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका जो एक्सचेंज रेट है वो नहीं भी है जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी डिटरमिन करते हैं, तो आप अगर लॉन्ग रन डाटा ड्रा करें तो आप ये देखेंगे कि एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज मूविंग टू अ मूविंग टारगेट विच इज डिटरमिन्ड बाय द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. कि अगर आप एक्सचेंज रेट के ट्रेंड्स ड्रा करें तो इन द लॉन्ग रन डिफरेंट गुड्स के दरमियान जो बास्केट ऑफ प्राइसेस की गुड है, रेशो ऑफ प्राइसेस है, आपका जो एक्सचेंज रेट है वो उसी की तरफ मूव कर रहा होगा जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी सजेस्ट करती है. और उसमें जो लैग है कि भाई आपका मुसलसल एक्सचेंज रेट उसकी तरफ फॉलो कर रहा है लेकिन उस तक पहुंच नहीं रहा, इसकी रीज़न ज़ाहिर है कि इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इधर ये दी हुई है. रीज़न फॉर द डिले इज इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन कि ट्रेडर्स को फौरी तौर पे प्राइस डिफरेंस का पता नहीं चलता. लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि ट्रेड में अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 3 मंथ के होते हैं, तो आप ज़रा वो पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल करेंगे और उसके बाद आप प्राइस डिफरेंस जो है उसका फ़ायदा उठा सकेंगे. इसके अलावा मार्केटिंग कास्ट. In addition, we recognize that exchange rate is not solely determined by the trader behavior. There are also investors in the market. अब जबकि हमने ये assume कर लिया कि due to imperfect information and due to the other barriers, the response of the traders is not immediate. It will take time. तो जब आप इस रिस्पॉन्स में टाइम लेना है तो परचेजिंग पावर पैरिटी नीड नॉट टू होल्ड एट अ particular time or particular point of time. The theory imagines that trader eventually will adjust to the price differences, causing an eventual adjustment of the spot exchange rate toward the purchasing power parity theory exchange rate. अब ये कि इन द लॉन्ग रन जब ये एडजस्टमेंट्स हो रही होंगी कि आपका एक्सचेंज रेट उस एक्सचेंज रेट की तरफ को मूव कर रहा होगा जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी डिस्क्राइब करती है. It is quite possible that purchasing power parity exchange rate also continue to change. In this case, the spot exchange rate is adjusting toward a moving target. क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी जिस प्राइस रेशो से जो एक्सचेंज रेट डिटरमिन करती है वो भी मुसलसल चेंज होता रहेगा, तो आपका स्पॉट रेट भी चेंज होता रहेगा. अब ये कि अगर आप ये कहते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करती है बट इन द शॉर्ट रन इट डज नॉट होल्ड, तो आप क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि लॉन्ग रन से मुराद कितना टाइम पीरियड है. तो चूंकि इकोनॉमिस्ट जब भी लॉन्ग रन की बात करते हैं तो डिफरेंट सिनारियोज को देखते हुए इट इज सम टाइम, सम मंथ, सम ईयर्स और इवन डेकेड्स. आल्सो परचेजिंग फॉर पैरिटी में जैसे कि हमने ये कहा कि एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टारगेट है कि आपकी प्राइस रेशियोज भी जब दो कंट्रीज के दरमियान चेंज होती रहेंगी और एक्सचेंज रेट ने अगर उस प्राइस रेशियोज के साथ एडजस्ट करना है तो उसने भी मुसलसल चेंज होते रहना है. तो इन रियल लाइफ इट इज़ पॉसिबल कि मुसलसल एक डायरेक्शन में तो मूव करता रहे लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस पॉइंट पे पहुंच जाए जहाँ पे एग्जैक्ट आप कहें कि इस वक्त जो एक्सचेंज रेट है वो वही है जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ने डिस्क्राइब किया है. इसके लिए एक हाइपोथेटिकल या फर्जी डाटा है जिसको ड्रा किया गया है. इसके बजाय नेक्स्ट में एक रियल डाटा दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं. दोनों सिचुएशन में प्राइस रेशो यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बिटवीन टू कंट्रीज और दूसरा ये है मार्केट बास्केट रेशो ए और बी के दरमियान दी हुई है और ये एक्सचेंज रेट है दो कंट्रीज ए और बी के दरमियान. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ओवर द टाइम अगर ये जो रेशो है ये चेंजिंग है ओवर टाइम, लेकिन इनका ट्रेंड अगर आप देखें जैसे रिग्रेशन में देखते हैं तो एक्सचेंज रेट का ट्रेंड जो कि आप ब्लू लाइन से शो हो रही है और ये जो ब्लैक लाइन है ये मार्केट बास्केट की प्राइस रेशो है जो ओवर द टाइम हमने ड्रा की है. तो एक्सचेंज रेट इसके ऊपर नीचे इसके साथ साथ मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ओवर द टाइम जिस डायरेक्शन में आपकी रेशो ऑफ मार्केट बास्केट प्राइस ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स मूव कर रही है. ये डाटा फर्जी डाटा और ये 1904 से 2004 तक का लिया गया. और इसमें अगर आप ये देखें कि स्पॉट एक्सचेंज रेट एग्जैक्टली रेशो प्राइस रेशो ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स के इक्वल सिर्फ 2 या 3 जगहों पे है, वो भी उस टाइम पे जब एक्सचेंज रेट की जो लाइन है वो क्रॉस करती है रेशो ऑफ प्राइस ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स.
लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन इसकी ओवरऑल ट्रेंड सेम ही है जो कि उस प्राइस रेशो का ट्रेंड है। So the trend of the exchange rate between the country is almost precisely the trend in the market basket ratio. Both move upward at about the same average rate. Sometimes the exchange rate is below the market basket ratio, even if for a long time, but other times the exchange rate rises up above the market basket ratio. The idea here is that lengthy exchange rate deviation from the market basket ratio means long period of time in which the cost of goods is cheaper in one country than in another country. Eventually, traders will respond to these price discrepancies and begin to import more from the less expensive country. This will lead to the increase in demand for that country currency and cause the exchange rate to move back to the toward the market basket ratio. However, in the long run version of the theory, this will take time, sometime a considerable amount, even year or the more. कि अगर आपका exchange rate जो है वो for the long time period of the time आपका वो नहीं है जो spot होना चाहिए exchange rate, it is deviated from that. तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गुड्स के प्राइस रेशियो है वो एक कंट्री में चीपर है और दूसरे में उनकी प्राइस ज़्यादा है, और थोड़ा सा टाइम गुजरेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं है, उसको टाइम लगता है। आफ्टर सम टाइम जब ट्रेडर्स को ये बात पता चलेगी, दे विल स्टार्ट इम्पोर्टिंग फ्रॉम द गुड्स फ्रॉम द कंट्री वेयर दीज आर द चीपर एंड वी रीसेल इन द कंट्री वेयर दीज आर एक्सपेंसिव। और इस तरह इनकी डिमांड बढ़ने से उस कंट्री की करेंसी जो सी है उसकी प्राइस भी बढ़ेगी और एक्सचेंज रेट विल मूव बैक टू द रेशियो प्राइस रेशियो ऑफ द मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स। इसी तरह यूएसए और यूके की टर्म्स ऑफ ट्रेड या एक्सचेंज रेट का डाटा और एडजस्टेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रेशियो दी हुई है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ओवर टाइम ये दोनों ट्रेंड्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। ये कि एक्सचेंज रेट जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हमने कहा था कि प्राइस ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स की जगह हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज़ करेंगे। तो ये डॉटेड लाइन है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रेशियो है यूएसए डिवाइडेड बाई यूके इन द लॉन्ग रन, और ये जो ब्लू लाइन है ये इन दोनों कंट्रीज की करेंसी के दरमियान एक्सचेंज रेट है। So under the long run purchasing power parity theory, the purchasing power parity exchange rate is thought to represent a target toward which the spot exchange rate is slowly drawn over time. The empirical evidence for this theory is mixed. आप अगर आपके पास जो दूसरी बुक है सेल्वाटोर की, उसमें अगर आप इसके एम्पेरिकल एविडेंस निकाल के देखना चाहें जो परचेजिंग पावर पैरिटी 15th आई थिंक चैप्टर है, तो उसमें डिफरेंट स्टडीज़ का रिजल्ट दिए हुए हैं कि कुछ स्टडीज़ जिन्होंने इसको इसके थे कि भाई रिजल्ट जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं और कुछ के जो इसके अगेंस्ट थे, लेकिन वहाँ पे स्टडीज़ थोड़ा सा शायद ज़्यादा डिटेल में हो, लेकिन इधर भी शायद लास्ट सेक्शन में दी हुई होंगी। लॉन्ग रन डाटा शोइंग द ट्रेंड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रेशियो बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड यूके relative to the dollar price, a dollar divided by the pound exchange rate suggests some validity of the theory. इसके अलावा एक नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसमें रह गया है वो है ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन एंड परचेजिंग पावर पैरिटी क्रॉस कंट्री कंपैरिजन। ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन मीन ये कि करेंसी हम समटाइम कहते हैं इट इज ओवर वैल्यूड, समटाइम कहते हैं इट इज अंडर वैल्यूड। मीन फॉर एग्जांपल वी से दैट चाइना केप्ट इट्स करेंसी अंडर वैल्यूड। अब पहला इस पोर्शन का जो पर्पस है इस पार्ट का वो ये कि इसका मतलब कि हम कब कहते हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि करेंसी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। तो इसके पीछे दो थीम्स हो सकती हैं या पॉइंट्स हैं। पहला क्या है कि आप एक्सचेंज रेट जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी सजेस्ट करती है, अगर वो ना हो उससे ज़्यादा हो तो आप कहेंगे आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड है। दूसरा आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपका एक्सचेंज रेट ऐसा हो जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस ना हो रहा, उसमें डेफिसिट हो ओवर द लॉन्ग रन, या मतलब वो बैलेंस ना हो, तो आप ये कहेंगे कि एक्सचेंज रेट इज ओवर वैल्यूड रिलेटिव टू द रेट प्रीज्यूम्ड नीडेड टू बैलेंस द करंट अकाउंट। कि क्या एक्सचेंज रेट हो कि आपका करंट अकाउंट यानी जो है वो बैलेंस हो जाए, तो वो आपका एक्सचेंज रेट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा तो आप कहेंगे कि आपने अपनी करेंसी को ओवर वैल्यूड किया हो। लेकिन कॉमनली ये टर्म्स
जब आप ये यूज़ करते हैं तो इसमें कहने का पर्पज़ जो है ये है कि कोई भी एक्सचेंज रेट ऐसा नहीं जो एग्जैक्ट आप ये कहें कि हाँ जी कंफर्म एक कंट्री में एक वेरिएबल है जो ओवर द टाइम चेंज होता रहता है, इट रिस्पॉन्ड टू द अदर वेरिएबल्स, और दूसरे वेरिएबल्स चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल इसके अलावा एक्सचेंज रेट जो होता है वो सिर्फ इन दो वेरिएबल से चेंज, इसमें इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी भी आती है और उसमें और भी बहुत से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो इसलिए आप कोई भी एक गिवन एक्सचेंज रेट नहीं जिसको सामने रख के आप कहें कि हाँ जी एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट को ये ही होना चाहिए। फर्स्ट लेट्स कंसिडर over and undervalued with respect to the purchasing power parity theory. The purchasing power parity exchange rate is defined as the rate that equalizes the cost of a market basket of goods between two countries. So exchange rate between peso and dollar should be equal to the cost of basket in terms of peso divided by cost of basket in terms of dollars. And so it is the rate which is suggested by the purchasing power parity theory between two currencies. Now, if the United States dollar is overvalued with respect to the Mexican peso, then say that spot exchange rate exceeds the purchasing power parity exchange rate. अगर आपका स्पॉट जो एक्सचेंज रेट है वो नहीं है जो कि इस इक्वेशन की में परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो उनसे सजेस्ट करती है कि ये होना चाहिए, और ये क्या है जो कि आपकी कास्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स की रेशो के इक्वल है। This will also mean that exchange rate exceeds the ratio of market basket of goods. अब आप जो स्पॉट रेट है उसको इधर ही रहने दें, और ये जो आपका एक्सचेंज रेट करंटली एग्जिस्ट कर रहा है उसकी जगह पे आप उससे, चूंकि अगर वो ज़्यादा है तो वो आपकी मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स से भी ज़्यादा है। देयरफॉर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो आपकी कास्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर है इसे आप इस साइड पे ले दें और स्पॉट एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दें। It is more than the cost of basket in terms of pesos. जब आप सारी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकें तो the left side of this expression represents the cost of the United States market basket but in terms of peso at the current exchange rate. The right side is the cost of the basket in Mexico also evaluated in terms of pesos. So here जो मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स है इन टर्म्स ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ पैसो इन यूएस से उसकी प्राइस ज़्यादा है, और जबकि दूसरे कंट्री में इसकी प्राइस जो सी है वो कम है। 10 फॉर द मतलब जब आपने करंट एक्सचेंज रेट को से चेक किया, 10 फॉर द यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू बी ओवर वैल्यूड विद रिस्पेक्ट टू द पैसो मीन्स दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव इन यूएसए देन इन मेक्सिको, एंड इट आल्सो implies that goods and services are relatively cheaper in Mexico. अब इसमें अगर इस तरह ओवर वैल्यूड है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर आपका यूएसए में से कोई ट्रैवलर है वो मैक्सिको जाता है तो उसे गुड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीपर लगेंगे। उसके व्यू पॉइंट से अगर उसका एक्सचेंज रेट डॉलर का ज़्यादा भी है तो जब वो किसी और कंट्री को विजिट करेगा तो उसको चूँकि सारी चीज़ें चीपर लगेंगी तो उसके मतलब पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर अंडर वैल्यूड आपका एक्सचेंज रेट है इट्स मीन दस एन अंडर वैल्यूड करेंसी विल बाय लेस इन अदर कंट्रीज। अगर आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड है जैसे डॉलर है उसको आप पाकिस्तान में भी लेके आए तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर आप करेंसी जो सी अंडर वैल्यूड नहीं अंडर वैल्यू है तो फिर आप दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो यू विल बाय लेस ऑफ दोस थिंग्स। नाउ ये थी एक्सप्लेनेशन कि एक करेंसी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड कैसे होगी। इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स के व्यू पॉइंट से इसका डिफरेंट रिजल्ट होगा, जबकि जो टूरिस्ट हैं उनका इसके हिसाब से डिफरेंट रिजल्ट होगा। ओवर एंड अंडर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द करंट अकाउंट बैलेंस, इसमें से जो हमने अभी तक किया, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू पीपल में आस्क। मेरा आज वैसे तो चैप्टर खत्म करना चाहती थी लेकिन मेरे ख्याल से अब काफ़ी टाइम हो गया तो आज का इतना काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसको पीछे से पढ़ के नहीं आएंगे तो अब कल तकरीबन इसे ख़त्म करना है। आप इसको अच्छी तरह से देख के रिव्यू करके आएँ ताकि अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको हम रिवाइज कर सकें।